us see practical number 4. Configure IP static routing. Configure IP addressing on the routers. Configure static routing. Configure IPv6 addressing on all nodes. These are the 3 steps when you perform the practical number 4, that is configure IP static routing. We know that we can configure IPv6 by 2 ways. One is static and another is auto configuration. In third practical, we had seen that IPv6 configuration using the auto configuration as well as manual configuration. So let us see what is static routing. For that purpose, you have to perform the table, routing table. We have used here 2 routers and 4 PCs. In between the 2 routers, there is an interface, that is a fast Ethernet, and in between a router and a switch, and from switch to PC, some Ethernet cables and some addresses are provided. So you have to perform the routing table like this. This will be the structure of our network while we are configuring IPv6 static routing. Routers are there. How many networks are there in this particular structure? There are 3 different networks. This is one network, router to router. This is another network, router to one network, R1 to S1, and third network is there, R2 to S2. So these are 3 different networks. This is the first network. This is another network, and this is third network. So 3 networks are there. Now we are actually transmitting data from this computer to this computer. So for that purpose, static routing method we are employing here. Now here let us see this router 1. This router 1 having fast Ethernet 0, 0 between switch and router. Switch 1 and router. So here 2001 is the network 1 and 2002 is another network, network 2. Now this router, when we configure the router at that time, this will be the address of this network, 2001 colon colon 1 prefix 64. So this network address is provided when we configure this router. And in the same way, when we configure router 2 at that time, this particular network the network address will be configured for this network. And in between these 2 routers, at the right side, 2000 colon colon 1 and 2000 colon colon 2 at right side. So let us see one by one. This one, the steps of configuring router 1. The first step is configure IPv6 address on router 1 with static IPv6 root. So for that purpose, we have to first use this command enable. How we can use this one? We just click on router and then CLI mode. We must enter into the CLI mode and then press use this command enable. The next command is configure terminal. When we implement this configure terminal, at that time the prompt changes from router to router config. Now I want to change the name of this router because this is of router 1. So host name must be changed. So host name space R1. This is the command, or simply host R1. Then this will change from router to R1. Router R1 config. Then we have to implement the important command, that is IPv6 unicast routing. You must not forget this command while you are configuring the routers. Unicast routing. Then
implement the Ethernet, fast Ethernet command, interface fast Ethernet at 00 side. At 00 side, that means at 2001 network, you have to implement this IPv6 address, 2001:164. Then the command, next command is no shutdown and exit. After that, we must enter another end of the router, that is fast Ethernet 01. हमने पहले 00 फास्ट इथरनेट को कॉन्फ़िगर किया, आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस दिया है। बाद में हम नेक्स्ट साइड हम इंप्लीमेंट करेंगे 01 की। तो 01 में हमने क्या किया, फिर यहाँ पे 2001 पहले 00 में था, तो 01 में 2000 नेटवर्क इंप्लीमेंट होता है, तो उसका हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे सेट किया है 2000::1. देन नो शटडाउन, एग्जिट. Then this command should be implement after configuring router 2 also. ये यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट करना नहीं है आपने, फिर भी हम एक कमांड देख लेते हैं, ये R1 का IP स्टैटिक रूटिंग का IPv6 रूट अननोन नेटवर्क, हमें ये पता ही नहीं अभी 2002 हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन कॉन्फ़िगर करने के बाद भी हमें पता नहीं है, तो यह हम कहेंगे इसको अननोन नेटवर्क. और नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा है इसका, R1 के सामने वाला नेटवर्क, ये 2000 है और 2 है राइट साइड में, ठीक है. तो ये कॉन्फ़िगर रूटर 1 हो चुका है सपोज. फिर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं. सेकंड स्टेप में हम कॉन्फ़िगर IPv6 एड्रेस ऑन रूटर 2 विद स्टैटिक IPv6 सेम एज रूटर 1. जैसा रूटर 1 में हमने किया कॉन्फ़िगर, वैसे ही रूटर 2 में हम कॉन्फ़िगर करेंगे सेकंड स्टेप में. तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे ये सारी कमांड्स. तो यहाँ पे अभी देखिए कहाँ पे चेंजेस है. होस्ट हमने नाम चेंज कर दिया R2, क्योंकि ये हम R2 पे कर रहे हैं, तो R2 पे कैसे करेंगे, रूटर 2 पे क्लिक करेंगे. रूटर 2 पे क्लिक करने के बाद CLI मोड में जाएंगे, और CLI में फिर हमने ये सारे कमांड्स इंप्लीमेंट करनी है. तो ये तो इंपॉर्टेंट कमांड है IPv6 यूनिकास्ट रूटिंग, ये तो हमें याद रखना ही है. फिर लेफ्ट साइड वाला बॉटम साइड वाला ये हमने इंप्लीमेंट किया फास्ट इथरनेट 00, जो कि स्विच को कनेक्ट करने वाला है नेटवर्क, उसको हमने आईपी एड्रेस दिया है 2002. वहाँ पे 2001 था, यहाँ पर 2002 हम लिखेंगे, और 1 उसके बाद 64 प्रीफिक्स हम लगा देंगे. फिर नो शटडाउन, एग्जिट. उसके बाद हम इसका दूसरा साइड, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला साइड, उस रूटर R2 का लेफ्ट वाला साइड 0/1, उसको हमने आईपी एड्रेस देना है 2002. वहां पर रूटर 1 ने क्या दिया था, 1 दिया था. रूटर 1 को हमने 1 दिया था, यहाँ पे रूटर 2 को 2 देंगे. नो शटडाउन, एग्जिट. और सेम इंप्लीमेंट करना है हमें कमांड, दैट इज आईपी रूट. तो आईपी रूट अननोन नेटवर्क नेक्स्ट हॉप एड्रेस. अब लेफ्ट साइड में अगर हम इमेजिन करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमने किस नेटवर्क को कनेक्ट करना है, R2 से 2001 को, और उसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है, नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा है, तो 2001, उसके सामने वाला जो आईपी एड्रेस नेटवर्क है वो हैविंग 2000 एंड ::1, ये नेटवर्क एड्रेस है. तो ये वाला हमने ये कहा कि हमने ये किया है, तो इसके सामने वाला ये है नेटवर्क. नेक्स्ट हॉप एड्रेस इज दिस वन, एंड अननोन नेटवर्क इज दिस वन. Unknown network is this one, that is 2001:64. ये 2001:64 ये नेटवर्क इसके अननोन है, इसको अननोन है. लेकिन इसके सामने वाला जो है, जिसके थ्रू ये जाने वाला है, इसके किसके थ्रू जाने वाला है, ये 2000::1 के थ्रू जाने वाला है. तो इसका नेक्स्ट हॉप ये रहेगा. तो ये कमांड हमने इंप्लीमेंट करनी है. अब यहाँ पर देखिए, दोनों अगर हम करते हैं कॉन्फ़िगर, तो क्या चेंजेस है दोनों में, क्या बदलाव है दोनों में, जो हमने कमांड दिया है. यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 दिया हमने, दोनों कॉमन है, यूनिकास्ट. यहाँ पर भी कॉमन रहेगा, क्योंकि ये इसका फास्ट इथरनेट है और ये R2 का फास्ट इथरनेट है. फिर फास्ट इथरनेट 00 के लिए R1 का जो आईपी एड्रेस था ये 2001 और यहाँ पर 2002. फिर दोनों कमांड कॉमन है, यहाँ पे हम दोनों जाएंगे
नेक्स्ट नेटवर्क पे जाएंगे हम 01 को कनेक्ट होने वाला इंटरफेस, और यहाँ पर हमने 2000 लिखा है 1, और नेक्स्ट इसका जो R2 पे हम करेंगे, लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो 2002, दिस 2000::2, और यहाँ पर R1 की तरफ से हम देखेंगे तो R1 की तरफ से 2000::1, इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, मतलब आईपी एड्रेस सेट करना है। नो शटडाउन एग्जिट। अब ये होने के बाद ये ब्लू में जो मैंने कमांड दिया, ये आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द बोथ रूटर्स, ये हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है कमांड। तो फिर से हम क्या करेंगे, R1 पे जाएंगे, वापिस एग्जिट कर देंगे और वापिस R1 पे जाएंगे। R1 पे जाने के बाद वहां पर CLI मोड में जाएंगे। CLI कमांड में हमने लिखना है IPv6 रूट अननोन नेटवर्क। अननोन नेटवर्क कौन सा है, ये वाला अननोन नेटवर्क है 2002 का, ये वाला। और इसका नेक्स्ट कौन सा है, R1 का नेक्स्ट कौन सा है, ये इसके थ्रू हम यहाँ पे कांटेक्ट करने वाले हैं 2002 को। दिस इज अननोन फॉर R1, तो वाया 2000::2 ये इसको कांटेक्ट करने वाला है, तो ये कमांड है। फिर अगर हम R2 की बात करें तो R2 में क्या है, ये अननोन है 2001, ये नेटवर्क अननोन है इसके लिए, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे IPv6 रूट 2000, और इसका नेक्स्ट कौन सा है, ये 2001, ये। तो ये इस तरीके से हम सेकंड स्टेप में कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर थर्ड स्टेप जो आएगी, ये थर्ड स्टेप आएगी यहाँ पे अभी, कि हमें पीसी को एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस पीसी को प्रोवाइड करने हैं। तो हमने यहाँ पे IPv6 ये PC1 को दिया है, कौन सा, 2001::2। ये जो PC1 है, इस PC1 को हमने ये 2001::2, क्योंकि 1 नहीं दे सकते, 1 गेटवे हमने ऑलरेडी सेट किया है और ये लिंक लोकल एड्रेस बाय डिफॉल्ट ये आता है। वैसे ही हमने 2 को देना है ये 2001:3, और ये बाय डिफॉल्ट एक IPv6 गेटवे ये मिलेगा हमें 2001::1। अगर नेटवर्क 2 की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे PC3 और PC4 ये दो PCs हैं, तो यहाँ पर हमने 2002, यहाँ पर क्या दिया था हमने, आईपी एड्रेस 1 का नेटवर्क है इसलिए 2001 लिखा, ये 2 का नेटवर्क है, 2002 का नेटवर्क है, तो 2002::2 ये हमने यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे 3। तो इस तरीके से हम IPv6 एड्रेस पीसीस को असाइन करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि आपको रूट देखना है IPv6 नेटवर्क का, तो इसके लिए कमांड आएगी शो IPv6 रूट। तो ये सारे एंट्रीज आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि फास्ट इथरनेट 01 पे क्या है, फास्ट इथरनेट 01 उसके बाद 00 पे क्या है, ये सारे चीजें यहाँ पे वो शो करेगा। फिफ्थ स्टेप आती है, आपको IPv6 प्रोटोकॉल का डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अगर सिस्को रूटर का देखना है तो ये आप शो IPv6 रूट प्रोटोकॉल ये यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो इसमें क्या आएगा, कनेक्टेड आएगा, और हमने कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल यूज किया है, स्टैटिक, तो यहाँ पे स्टैटिक लिख के आएगा। सिक्स स्टेप, दीज आर नॉट द इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये सिर्फ समझने के लिए हमें। फिर स्टेप 6 में हम क्या करेंगे कि इंटरफेसेस कौन से इसमें डिटेल्स उसका हमने देखना है इंफॉर्मेशन, तो शो IPv6 इंटरफेस। लेकिन याद रखें कि कहां पर आपने इंप्लीमेंट करनी है, एग्जिट होने के बाद, कंट्रोल Z करने के बाद, उसके पहले अगर करेंगे तो ये कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद 7th स्टेप आती है, चेक कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीसीज यूजिंग पिंग कमांड। हमें पिंग कमांड यूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें मालूम पड़ेगा कि कनेक्टेड है या नहीं है, या फिर कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लिक ऑन एनी पीसी, किसी भी पीसी पे हम क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट, क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। देखिए आप तीसरा या चौथा ब्लॉक है कमांड प्रॉम्प्ट, वहां पर क्लिक करिए, आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा पीसी, उसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट करना है पिंग कमांड। जिस पीसी को क्लिक किया उसके अलावा किसी और पीसी का एड्रेस हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमने किसी पीसी को क्लिक किया, PC1 को क्लिक किया और PC
3 को हमने यहाँ पे पिंग करना है। तो PC3 का जो एड्रेस होगा ये है 2002::2। तो ये रिप्लाई अगर आता है इसका मतलब ये कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन होता है इसका मतलब यहाँ पे पैकेट्स एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये पूरा रियल टाइम कनेक्शन में अगर हम देखते हैं, यहाँ से पैकेट हमने लिया, यहाँ से पैकेट हमने क्लिक किया, यहाँ पे पुट किया और किसको सेंड करने वाले हैं, इसको सेंड करने वाले दूसरे नेटवर्क में। तो ये अगर सक्सेसफुल आता है इसका मतलब ये पैकेट सेंड होता है और सेंड हो रहा है और साथ में कम्युनिकेशन भी हो पा रहा है। सिमुलेशन मोड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक पैकेट किसी पीसी पे रखना है, दूसरा कहाँ पे रेसिपिएंट कौन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है और ऑटो कैप्चर या फिर प्ले इसको हमने क्लिक करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी और सक्सेसफुली दैट विल बी कॉन्टेक्टेड एंड सेंड। तो ये इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो थोड़ा सा मैं अभी प्रैक्टिकल कैसे सेंड होता है, पैकेट कैसे सेंड होता है मैं दिखाता हूँ आपको। आपने ये इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 4, कॉन्फ़िगर आईपी स्टैटिक रूटिंग। यहाँ पे जैसा हमने देखा कि ये रूटर को हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, CLI में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसा यहाँ पे R1 है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िग करना है, ये सारी कमांड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। वैसे ही यहाँ पर भी जाना है और कॉन्फ़िगर करना है। इसके बाद PC1 यहाँ पर जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे फिर से एक बार नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे 2001 क्योंकि ये 2001 का नेटवर्क है और इसको मैंने IP एड्रेस दिया है 2, सफिक्स यहाँ पे मैंने देता हूँ प्रीफिक्स देता हूँ 64, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर IPv6 का गेटवे मैंने ऑलरेडी सेट किया है 2001, ये वाला इस रूटर का गेटवे IP एड्रेस। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे सेट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें ये होता है या नहीं होता है। यहाँ पर मैंने पुट किया पैकेट और मैं सेंड करना चाहता हूँ दूसरे नेटवर्क के पहले कंप्यूटर यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, इसका मतलब ये कम्युनिकेट करता है। चलो देखते हैं दूसरा, सेकंड कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ सेकंड नेटवर्क, ये भी सक्सेसफुल है। चलो देखते हैं तीसरा, फर्स्ट कंप्यूटर फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड कंप्यूटर सेकंड नेटवर्क, सक्सेसफुल। मतलब ये सारे सक्सेसफुल यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क इस तरीके से हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो आप फोर्थ प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए। नॉट नेसेसरी कि हमने यही लेना है IP एड्रेसेस, हमने यही स्ट्रक्चर लेना है, नॉट नेसेसरी, यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो एरर यहाँ पे नहीं चलती है, मेजर एरर तो बाद की बात है, लेकिन अगर हम माइक्रो एरर भी करते हैं यहाँ पे तो आपका नेटवर्क रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है क्योंकि एक बार फिर से रिकॉन्फिगर करना है तो ये पूरा सेटअप आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो ये हो सकता है, तो इसलिए आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपने ध्यान लगाकर आपने इसको परफॉर्म करना है, सारे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, सो ये फोर्थ प्रैक्टिकल यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं।